محترم دینی اور اسلامی بھائیوں، پردانشی میری ماں اور بہنوں، میں اپنا خطاب شروع کرنے سے پہلے ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے جناب محمد طاہر الدین صاحب جو اسی نیما کلا کے رہنے والے کمپنی میں کام کرتے تھے، ریٹائرڈ ہوئے ہیں۔ گزشتہ سال ہمارے جامعہ نور الہدا سلفیہ کے لیے اور کلیہ ختیجہ بنت خویلد للبنات کے لیے 1,00,000 روپے کا چندہ انہوں نے دیا تھا، الحمدللہ۔ اور گزشتہ سال جب میں آیا تھا، تقریر کر رہا تھا، تو میرے ہاتھوں 10,000 روپے کا تحفہ گراں قدر انہوں نے جامعہ کو دلایا تھا میرے ہاتھوں۔ آج جب ان کو پتا چلا میں آ رہا ہوں تو وہ میری عقیدت و محبت میں 40,000 اب تک جامعہ نور الہدا سلفیہ نیما کلا کے لیے دے چکے ہیں، اور مزید 10,000 روپیہ میرے ہاتھوں سے جامعہ کو دلانا چاہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر و احسن الجزا فی الدنیا و فی الآخرہ۔ اللہ تعالیٰ جناب محمد طاہر الدین صاحب کی عمر میں، ان کے زندگی میں، ان کے دکان میں، ان کے مکان میں، ان کے آل اولاد میں ڈھیر ساری رحمتیں برکتیں اللہ نازل فرمائے، اور جتنے بھی مرد و خواتین نام ظاہر کر کے یا بغیر نام کے کوئی زیورات دیے، کوئی پیسہ دیے، کوئی چھوٹی امانت، کوئی بڑی امانت، جتنے بھی لوگوں نے یہاں دامے درمے سکنے دیا ہے اس ادارے کے لیے اللہ کے راہ میں انفاق فی سبیل اللہ، کسی نے اپنی زکوٰۃ، کسی نے اپنے صدقات و خیرات، کسی نے اپنے عطیات، الحمدللہ میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے اس دینے کو قبول فرمائے، جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام اللہ آپ سب کو نصیب فرمائے، اور اللہ آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، عذاب قبر اور عذاب جہنم سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، اور دنیا کے ہر فتنوں سے نجات دلاتے ہوئے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اور خوشیاں اللہ آپ کو نصیب فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔ محمد طاہر الدین صاحب کی اس گراں قدر تحفے کو اللہ قبول فرمائے۔ یہ جامعہ کے لیے 10,000 روپیہ۔ ان الحمدللہ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع۔ وقال الله تعالى في موضع آخر وما للظالمين من نصير۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، رواه المسلم۔
रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा ज़य्यिन्ना बिज़ीनतिल ईमान वजअलना हुदातम मुहतदीन सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। आज झारखंड की सरजमीन में गुड्डा ज़िला जो ललमटिया और नीमा कला के इस कस्बे और गांव में जामिया नूरुल हुदा अस्सल्फिया व खतीजा बिनते कुवैलिद लिलबनात के तकरीबन 41वें सालाना जलसे में मैं आपका भाई मोहम्मद याकूब जामई दाई व मुबल्लिग कर्नाटक आपके सामने जुल्म ज़ियादती की मज़म्मत और मजलूम की बद्दुआ इस उन्वान पर कुरान और हदीस की रोशनी में लबकुशाई करने खड़ा हूं। काफी दूर से मैं और मेरे भाई मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब जामई हफिज़हुल्लाह कर्नाटक की सरजमीन से आपकी मोहब्बत और दावत नामे पर यहाँ तशरीफ लाए हैं। बड़ी खुशी होती है जब यहाँ का नज़ारा हम देखते हैं। यहाँ आप लोगों के अंदर रात भर जलसा गाह में बैठकर तकरीरें सुनने का शौक़, फिर अल्लाह के राह में आप लोगों के देने का ये शौक़, ये सबसे नुमाया है। हमारे कर्नाटक में ऐसा रिवाज नहीं है। जलसे होते हैं दिन भर या असर से इशा तक, रात 10 बजे ख़त्म हो जाते हैं। माशाअल्लाह आप लोगों का जज्बा, आप लोगों का शौक़ बड़ा नुमाया है। अल्लाह इसे कबूल फरमाए। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, जिस उन्वान को लेकर मैं आपके सामने खड़ा हूं वो जुल्म ज़ियादती का है। अल्लाह तबारक व तआला जुल्म को अपने ऊपर भी हराम करते हुए बंदों के लिए हराम करता है। अल्लाह कहता है या इबादी, ऐ मेरे बंदो, इन्नी हर्रमतु ज़ुल्म अलैया फतहर्रिमू बैनकुम, मेरे बंदो मैंने अपने ऊपर जुल्म करने को हराम कर लिया है, तुम भी आपस में जुल्म को हराम कर लो। यानी तुम आपस में जुल्म मत करो। जुल्म करना मुझे गवारा नहीं है, मुझे पसंद नहीं है। अल्लाह कुरान मजीद में कहता है मा लिज़्ज़ालिमीन मिन हमीम वला शफ़ीइ युता, जुल्म करने वाले जालिमीन का क़यामत के दिन ना कोई दोस्त होगा, ना कोई मददगार होगा, ना इसका कोई सिफारिशी होगा। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर, ना जालिमीन के लिए कोई मददगार होगा। सूरह गाफिर की 18 और सूरह हज की 71वीं आयत में अल्लाह कहता है। और अल्लाह तबारक व तआला सबसे ज्यादा इंसाफ करने वाला, इंसाफ को कायम करने वाला, इंसाफ को पसंद करने वाला, वो खुद भी जुल्म नहीं करता और लोगों के जुल्म को भी वो बर्दाश्त नहीं करता। अल्लाह तबारक व तआला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, जाबिर इब्न अब्दुल्लाह हदीस के रावी, कि ऐ मेरे उम्मतियों, इत्तक़ु ज़ुल्म, जुल्म करने से बचो, फ़इन्न ज़ुल्म ज़ुलमातुन यौमल क़ियामा, इसलिए कि जुल्म क़यामत के दिन कई तारीकियां लेकर इंसान के सामने खड़ा हो जाएगा। तारीकियां, अंधेरा। इंसान दुनिया में रोशनी में रहेगा, लेकिन क़यामत के दिन अंधेरी कोठरी में खड़ा रहेगा, उसे कुछ नजर नहीं आएगा। मेरे भाइयों, ये अंधेरापन, ये तारीकियां एक जुल्म करने वाले जालिम को अल्लाह देगा, और क़यामत के मैदान में वो इंसाफ करने वाला परवरदिगार हर एक का बदला दिलाएगा। और ये जुल्म ज़ियादती हुकूकुल इबाद से जुड़ा हुआ मसला है। हुकूकुल्लाह के मामले में कुछ कमी पेशी करो तो अल्लाह माफ कर दे, लेकिन हुकूकुल इबाद के मामले में अगर आप कमी पेशी करोगे, अल्लाह आपको उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक आपका भाई आपको माफ नहीं करेगा।
قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی دو بکریوں کو حاضر کرے گا. ان دو بکریوں میں سے ایک سینگ رکھنے والی بکری جو دنیا میں بغیر سینگ والی بکری کو ماری ہوگی, اللہ قیامت کے دن سینگ والی بکری کے سینگ نکال لے گا اور بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دے کر بولے گا اے بکری تو بھی مار کے ویسے ہی بدلہ لے لے جیسے دنیا میں اس نے تجھے مار کر ظلم کیا تھا. کس کا بدلہ دلا رہا ہے اللہ؟ ایک بکری کا, ایک بکری کا. اس بکری جس بکری کے لیے نہ جنت ہے نہ جہنم ہے, اس جانور کے لیے اللہ بدلہ دلا رہا ہے جس جانور کو جنت و جہنم کا مکلف اللہ نہیں بنایا. لیکن ظلم جانوروں میں بھی اللہ برداشت نہیں کرتا, اس کو بھی اللہ بدلہ دلائے گا. جب ایک بے زبان جانور بکری کو اللہ بدلہ دلا سکتا ہے تو ہم جیسے ظالموں کو اللہ کیا چھوڑے گا, جبکہ ہمارے لیے جنت و جہنم اللہ بنایا. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام حضرت عمر بن خطاب بیان کرتے, ہم خطبہ حجۃ الوداع میں نبی کے سامنے کھڑے ہیں. نبی علیہ السلام دجال کے صفات بیان کرنے کے بعد کہتے ان اللہ حرم علیکم دماؤکم واموالکم کحرمت یومکم ھذا وفی بلدکم ھذا وفی شہرکم ھذا. اے میرے امتیوں, بے شک ایک مومن کے خون کو اللہ نے حرام کر دیا جیسے اللہ نے اس شہر مکہ کو حرام حرمت والی جگہ بنایا, اس حرمت والے مہینے ذی الحجہ کو اللہ نے جیسے حرمت والا بنایا, اس زمین کو جیسے حرمت والا بنایا, ایک مومن کا خون بھی اللہ نے اسے حرمت کے ساتھ حرام کر دیا. کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کا خون ناحق بہائے یا کسی پر ظلم و زیادتی کرے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ لیملی لظالم, اللہ ظلم کرنے والے ظالم کو ڈھیل دیتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ یہ ظالم کب تک ظلم کرے گا, کتنا بھی ظلم کرے گا. ایک استاد کو ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنے شاگردوں پہ ظلم کرے, ایک آقا کو, ایک مالک کو ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنے نوکر چاکروں غلاموں پہ ظلم کرے, ایک رعایا کے حاکم کو ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنے ماتحت میں رہنے والے رعایا پہ ظلم کرے, اور ایک امیر کو اور ایک جماعت کو, جمعیت کے ذمہ دار کو اور ایک گھر کے سرپرست کو, ہر کسی کو اللہ ظلم دیتا ہے. کسی ساس کو ظلم دیتا ہے کہ وہ اپنے بہو پہ ظلم کرے. لیکن یاد رکھے, جب ظلم کرنے والا ظالم حد سے آگے بڑھتا ہے فَإِذَا أَخَذَتْهُ لَمْ يُفْلِتْهُ, جب اللہ کی قدرت اسے پکڑتی ہے تو اسے کوئی نہیں چھڑا سکتا, اللہ کی طاقت سے کوئی نہیں بچا سکتا. فَإِذَا أَخَذَهُ أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ, جیسے کہ اللہ نے ان بستی والوں کو پکڑا جو بہت ہی بڑے ظالم تھے. إِنَّ أَخَذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ, بے شک اس اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, سورہ یاسین میں اس کا ذکر اللہ کرتا ہے وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. کیا تمہیں معلوم نہیں, اے میرے نبی ان کے سامنے ان بستی والوں کی مثال بیان کرو جب بستی میں ایک نبی اللہ کا نبی بن کر آیا, اللہ کے دین کی دعوت کا کام کرنے لگا, لوگوں نے اسے مارا اور اپنے پیروں تلے, جانوروں کے پیروں تلے اسے روننا شروع کیا. اسی وقت اللہ بستی کے کنارے ایک اور ایک شخص کو نبوت دیا, اور وہ بھی نبی اللہ کے ان بستی والوں کے سامنے آ کر کہتا ہے لوگو اس آدمی پر کیوں ظلم کرتے ہو, چھوڑو, وہ اپنی دعوت پر تم سے روٹی نہیں مانگتا, وہ تمہارے آخرت کی فکر کرتے ہوئے کہتا ہے ایک اللہ کا اعلان کرو کامیاب ہو جاؤ گے, اس کی بات پسند آئے تو قبول کرو, نہ پسند آئے تو چھوڑ دو, ظلم کیوں کرتے ہو. یہ بھی اس کی جیسی باتیں کرتا ہے, چلو اسے بھی مارتے ہیں. انہوں نے پہلے نبی پر ظلم کر رہے تھے, جیسے ہی ایک دوسرے نبی آ کر ان کو سمجھائے, دوسرے نبی پر بھی ظلم کرنا شروع کیا. اللہ کی قدرت نے ان بستی والوں کو پکڑ لیا, آسمان سے چیخ آئی, اللہ زمین کو پھاڑ کر ساری بستی والوں کو زمین میں دھسا دیا. میرے بھائیوں, کسی بھی ظالم کے ظلم کو اللہ ایک حد تک برداشت کرتا ہے, ڈھیل دیتا ہے, جب وہ حد سے آگے بڑھتا ہے اللہ کی قدرت اسے پکڑ لیتی ہے.
आज हम ताकतवर हैं, हम अपने कमजोरों पर जुल्म कर रहे हैं, ये ना समझे कि हम ताकतवर हैं। हर ताकतवर से बड़ा एक ताकतवर को अल्लाह इसी दुनिया में पैदा किया, और सारी दुनिया पर जुल्म करने वाले जालिम हाकिम या मालिक या बादशाह, जालिम बादशाह के लिए सारी दुनिया की ताकत से बढ़कर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की ताकत है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की ताकत के सामने किसी की ताकत काम नहीं करती। वो सारे ताकतों से सबसे बड़ी कुव्वत रखने वाला है, सारे दुनिया वालों पर सबसे बड़ी कुदरत रखने वाला कादिर मुतलक है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, इतना ही नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी मुस्लिम की रिवायत, हजरत मुआज़ इब्ने जबल को यमन का गवर्नर बनाकर भेज रहे हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुआज़ इब्ने जबल से कहते हैं, ऐ मुआज़, तुम अहले किताब की जानिब जा रहे हो, उनको तौहीद की दावत देना, नमाज का हुक्म देना, रोज़ों के बारे में बताना, ज़कात के बारे में बताना, फला फला सारी चीजें समझाकर जब जा रहे थे मुआज़ इब्ने जबल, नबी ने आखिर में कहा, या मुआज़ वत्तकी दावतल मज़लूम, ऐ मुआज़, मज़लूम की बद्दुआ से बचना। फ़इन्नहु बैन अल्लाहि व लैसा हिजाब, इसलिए कि अल्लाह के और बंदे के दरमियान, मजलूम की बद्दुआ और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला से जब कोई मजलूम हाथ उठाकर बद्दुआ करता है, उसकी बद्दुआ सातों आसमान चीरते हुए अर्श मुअल्ला तक पहुंच जाती है। हमेशा मजलूम की बद्दुआ से बचना। ऐ मुआज़, कभी मजलूम की बद्दुआ नहीं लेना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसीयत करते भेज रहे। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि बेशक जो भी दुनिया में किसी भी शख्स पर जुल्म करेगा, किसी भी इंसान पर जुल्म करेगा, अगर मजलूम ने बद्दुआ कर दिया, उस जालिम को अल्लाह दुनिया में भी सजा देगा, आखिरत में भी सजा देगा। और जुल्म की इंतहा, जब कोई इंसान, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कामिल मुसलमान मोमिन की अलामत क्या बताए? अल मुस्लिमु मन सलिमा अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी। एक कामिल मुसलमान, एक मोमिन की अलामत यह है, उसकी जबान और उसके हाथों से दूसरों को कोई तकलीफ ना पहुंचे। हर तकलीफ से हमारे अड़ोस पड़ोस महफूज रहे, हमारे जबान और हरकत और सकनात, हमारे हाथ पैर की शरारतों से उम्मते मुस्लिमा महफूज रहे। यह कामिल मुसलमान की अलामत है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, इतना ही नहीं, जो शख्स, अल्लाह के नबी कहते हैं, अल्लाह की कसम खाकर झूठा तिजारत करता है, झूठी कारोबार करता है, किसी चीज को बेचता है, अल्लाह तबारक व तआला इस पर जहन्नम, जन्नत को हराम कर दिया। और अगर कोई शख्स एक पीलू की काड़ी के बराबर भी कोई चीज झूठी कसम खाकर बेचता है, अल्लाह तबारक व तआला इसके इवज भी इसे क़यामत के दिन पकड़ेगा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, जुल्म बड़ी भयानक चीज है, किसी पर जुल्म न किया करो। अल्लाह के नबी कहते, अगर दुनिया में किसी 10 आदमियों का हाकिम किसी को बनाया गया, 10 आदमियों का जिम्मेदार किसी को बनाया गया, अगर उसने उनकी जिम्मेदारी अदा नहीं की और इनकी अमानत में खियानत किया, एक सुई भी उनकी अमानत में खियानत करके अपने पास रख लिया, तो क़यामत के दिन वो सुई लेकर वो अल्लाह के दरबार में आएगा। ये सुनना था, बाद सहाबा उठकर खड़े हुए और अपने ओहदों से इस्तीफा दे दिए। अल्लाह के नबी, हमको नहीं चाहिए ये ओहदा। आज हम ओहदा मांग मांग कर लेते हैं कि मुझे बड़ा बनाओ, मुझे अमीर बनाओ, मुझे मुतवल्ली बनाओ, मुझे खाजिन बनाओ। मेरे भाइयों, जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज होती है। अमानत में खयानत जुल्म है। बुखारी की हदीस, एक लड़का था जिसका नाम किरकिजा था, वो नबी के खीमे गाड़ा करता था। अचानक एक तीर जंग में से लगी और वो मर गया। सहाबा कहने लगे, ये तो जन्नती है, नबी के खीमे डालने वाला। नबी ने बयान फरमाया कि तुमने किस गिरा के बारे में कैसे कहा कि ये जन्नती है? मैं इसको एक माले गनीमत की चादर तकसीम होने से पहले जो इसने चुरा ली थी, उस चादर के बदले में इसे मैं जहन्नम की आग में देख रहा हूं। अमानत में खियानत जुल्म है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, इतना ही नहीं,
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, अतदरूना मल मुफलिस, ऐ मेरे उम्मतियों क्या तुम्हें मालूम है कि क़यामत का मुफलिस कौन है? अल्लाह के नबी, मुफलिस तो वो है जिसके पास खाने के लिए खाना ना हो, पहनने के लिए कपड़े ना हो, रहने के लिए घर ना हो। नबी ने कहा नहीं, क़यामत के दिन नेकियों के अंबार लेकर आएगा, नेकियों के पहाड़ लेकर आएगा, लेकिन किसी पर जुल्म किया होगा, किसी को मारा होगा, किसी को गाली दिया होगा, किसी का माल छीना होगा। क़यामत के दिन अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के दरबार में, मीज़ान इलाहिया में, इसके अल्लाह के तराजू में इसकी नेकी और बदी तोले जाने से पहले मजलूम आकर शिकायत करेंगे, अल्लाह हमारे जुल्म का बदला दिला। अल्लाह कहेगा, क्या भाई तूने इन पर जुल्म किया? ऐ मेरे बंदे, तूने इनका हक मारा, तूने इनके साथ ना हक तलफी की, जुल्म ज़ियादती किया, दे इनका हक दे। ला दीनार वला दिरहमा, वहां ना कोई दीनार लेकर आएगा न दिरहम। क्या होगा? अल्लाह ताला नेकियां उठा उठा कर दे देगा, सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन मजलूम खत्म नहीं होंगे। किसी की इज्जत लूटा था, किसी की अमानत में खियानत किया था, किसी का खर्जा लेकर डुबा दिया था, किसी की प्रॉपर्टी पे नाहक कब्जा जमा लिया था, किसी की जमीन हड़प लिया था, अस्तगफिरुल्लाह। इन तमाम जुल्म का बदला नेकियां देकर नेकियां खाली हो जाएंगी। अल्लाह मजलूमीन के गुनाह लेकर इस जालिम के सर पर थोप देगा। जितने नेकियों के पहाड़ लाया था उतने गुनाहों के पहाड़ में तब्दील हो जाएंगे। अल्लाह से कहेगा, अल्लाह मुझे बचा ले, अल्लाह मुझे माफ कर दे। अल्लाह क्या कहेगा? मेरे मामले में कमी पेशी करता, मैं तुझे माफ करता, लेकिन ये तो हुकूकुल इबाद का मसला है। अल्लाह ताला इस भिखारी को, इस फकीर को, इस मुफलिस को जो नेकियों के अंबार लाया था, जुल्म करने की वजह से सारी नेकियां खाली हो गई, गुनाहों के पहाड़ लेकर शर्मिंदगी के साथ जहन्नम में जाएगा। क़यामत के दिन मुफलिस बनने से बेहतर है दुनिया में अगर तुमने किसी पर जुल्म ज़ियादती की हो तो जाकर अपनी मौत से पहले माफ़ी मांग लो। किसी को गाली दिया है, माफ़ी मांग लो। किसी पर आपने बुरा भला कहा है, माफ़ी मांग लो, अब भी वक्त है। आप कहोगे मौलाना हम कैसे माफ़ी मांगे, हम तो बड़े ग्रेड वाले, हम तो बड़े बड़े खानदान वाले, हम अपने नौकर चाकरों से कैसे माफ़ी मांगे? अरे कुछ भी फर्क नहीं होगा जी। ये दुनिया की इज्जत बड़ी नहीं है, आखिरत की इज्जत सबसे बड़ी है। ये दुनिया की जिल्लत बड़ी नहीं है, आखिरत की जिल्लत सबसे बड़ी है। कोशिश ये करें कि क़यामत के दिन अल्लाह आपको इज्जत दे, क़यामत की जिल्लत से अल्लाह आपको बचा ले, ये कोशिश करें। खुतबे हज्जतुल विदा में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मतियों के सामने अल्लाह के दीन को, पैगाम को पेश करने के बाद सवाल करते हैं, ऐ मेरे उम्मतियों, मैंने अल्लाह के पैगाम को अमानतदारी से तुम तक पहुंचा दिया, क्या तुम इस बात की गवाही अल्लाह के दरबार में दोगे? हाँ अल्लाह के नबी, हम गवाही देंगे, आप बेशक अल्लाह के पैगाम को हम तक पहुंचा दिए। अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाह तू गवाह रहना, तू गवाह रहना, तू गवाह रहना, मैंने तेरे पैगाम को तेरे बंदों तक अमानतदारी से, पूरी दियानतदारी से पहुंचा दिया। उसके बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं, मेरे उम्मतियों, दीन आज मुकम्मल हो गया, दो चीजें छोड़े जा रहा हूं, कुरान और हदीस थामे रहोगे, कभी दुनिया में गुमराह नहीं होगे। इस दीन में जर्रा बराबर भी इजाफा नहीं करना, इस दीन में जर्रा बराबर भी कमी पेशी नहीं करना। जो कमी पेशी या ज्यादती करेगा वो क़यामत के दिन हौज़े कौसर से महरूम कर दिया जाएगा। और तुम में से जो हाजिर हैं वो गायब तक मेरे दीन को पहुंचा दें। उसके बाद नबी ने एक जुमला कहा, ऐ मेरे उम्मतियों, मैं इतने साल तुम्हारे दरमियान जिंदगी गुजारा, जाने अनजाने में अगर मुझसे किसी को ठेस पहुंची हो, तकलीफ पहुंची हो, वो मुझे माफ कर दे या आकर मेरा बदला ले ले, क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में मेरी गिरफ्त ना करे। कौन कह रहे हैं? कायनात के पैगंबर रहमतुल लिल आलमीन कह रहे हैं। अल्लाहु अकबर। आज हम अपने भाइयों से माफी मांगने तैयार नहीं। आज हम किसी का माल जो लूट लिया है, चोरी कर लिया है, नाहक कब्जा जमा लिया है, उसका माल लौटाने तैयार नहीं। क्या समझते हैं? हमारी इज्जत कम हो जाएगी, हमारे वखार कम हो जाएगा। अरे कायनात के पैगंबर से बड़ी इज्जत क्या जी तुम्हारी? कायनात
कायनात के पैगंबर से बड़ी हैसियत क्या जी तुम्हारी? अल्लाह अकबर। नबी उम्मत के सामने माफी मांग रहे हैं, ऐ मेरे उम्मतियों, अगर मुझसे किसी को तकलीफ पहुंची हो माफ कर दे, बदला लेना चाहे यहां आकर बदला ले ले, अल्लाह के दरबार में मुझे ना पकड़े। सारे सहाबा अश्कबार हैं, आंखें अश्कबार हैं। एक सहाबी उठे, अब्दुल्ला इब्ने अतीक उनका नाम, वो बोले अल्लाह के नबी आपने एक मर्तबा मुझे मारा था, मैं भी आपको मार के बदला लूंगा। अल्लाह अकबर। हजरत उमर बिन खत्ताब बोले अल्लाह के नबी ये तो मुनाफिक लगता है, आप इजाजत दीजिए मैं अपनी तलवार से इसकी गर्दन उड़ा दूंगा। नबी ने कहा नहीं, इसे आने दीजिए। उसे बुलाया गया, नबी ने उसके हाथ में कोड़ा दिया, ये ले भाई मुझे मार लो। मैंने कब आप पर मारा था मुझे तो याद नहीं, मार लीजिए। अल्लाह के नबी इंसाफ कीजिए। आप इंसाफ नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जब आपने मुझे मारा था मेरे बदन पे चादर नहीं थी, आज आपके बदन पे चादर है। इंसाफ का तकाजा यह है, आप अपनी चादर निकाले, मैं आपको वैसे ही मारूंगा जैसे आपने मुझे मारा। अल्लाह अकबर। नबी अपनी चादर निकाल दिए, उसके सामने सरेंडर हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने के लिए कोड़ा अपने हाथ में लेकर ऊंचा करते हैं, हाथ कांपने लगता है, हाथ से कोड़ा नीचे गिर जाता है, वो नबी से चिपट जाते हैं, गर्दन के नीचे मोहरे नबूवत को चूमने लगते हैं और कहते हैं फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह। ऐ अल्लाह के नबी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आपने मुझे कभी नहीं मारा। ग़ज़वा उहद में सफारा के दरमियान अपनी छड़ी से मुझे पीछे ढकेला था, मुझे तकलीफ जरूर हुई थी, उसी को मैंने बहाना बनाया। मैंने आपकी ज़बान ये हदीस सुनी थी, जो ईमान की हालत में मोहरे नबूवत को देख लेगा अल्लाह की जहन्नम की आग उसे नहीं छुएगी। ऐ अल्लाह के नबी, मैं इसी बहाने से आपके मोहरे नबूवत को चूमना चाहता था। अल्लाह के नबी ने कहा मैं दुआ करता हूं अल्लाह तुझ पर जहन्नम की आग हराम कर दे। इस वाक़िये से इबरत क्या मिलती है हमको? कायनात के पैगंबर अवामुन नास के सामने, उम्मत मुहम्मदिया के सामने एक माफी मांग सकते हैं, जबकि वो किसी पर जुल्म नहीं करने वाले, हर किसी पर रहम करने वाले, जालिमों से जुल्म लेकर, दुश्मनों से मार खाकर, बद्दुआ दिए बिना दुआएं देने वाले, अल्लाह अकबर, ऐसे रहमतुल लिल आलमीन अपनी आम उम्मत के सामने माफी मांग सकते हैं, तो हम क्यों नहीं जी मांग सकते? हम क्यों नहीं मांग सकते माफी? कौन सा पोजीशन घट जाएगा हमारा, कौन सी हैसियत घट जाएगी हमारी? मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, इतना ही नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलूम की बद्दुआ से बचने की तरगीब हमेशा दिए कि किसी मजलूम की बद्दुआ आप मत लो। क्यों? अबू दाऊद की हदीस है, जब कोई बद्दुआ करता है तो उसकी बद्दुआ आसमानों में जाती है, दाएं देखती है रास्ता, बाएं देखती है, आगे देखती है, पीछे देखती है, चारों तरफ से उसके रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। फिर वो बद्दुआ अल्लाह का फरिश्ता लेकर चढ़ता है, अल्लाह ताला से पूछता है या अल्लाह ये बद्दुआ आई है, इसके लिए चारों तरफ के रास्ते बंद हैं, अब मैं क्या करूं? अल्लाह ताला कहता है किसके लिए बद्दुआ की गई है? या अल्लाह फला के लिए बद्दुआ की गई है, क्या वो उस बद्दुआ का हकदार है? या अल्लाह इसका फैसला तू बेहतर कर सकता है, तू ही ज्यादा जानता है, क्या वो इस बद्दुआ का हकदार है या नहीं है? अल्लाह कहता है हाँ वो इसकी बद्दुआ का हकदार है, जाओ ये बद्दुआ उसके ऊपर उतार दो, उतार दी जाती है। अगर वो उसकी बद्दुआ का हकदार नहीं है तो अल्लाह फैसला करता है कि इसने नाहक उसके लिए बद्दुआ कहा है, फला पर बद्दुआ ना नाजिल की जाए। या अल्लाह तेरा फैसला क्या है, अब क्या किया जाए? अल्लाह कहेगा जिसने बद्दुआ दिया है ये बद्दुआ के कलिमात उसी पर उल्टा मुंह पर मार दिए जाएं, वो बद्दुआ उसी के ऊपर लौट जाती है। इसीलिए मेरे भाइयों, किसी पर बद्दुआ करने से पहले खूब सोच समझकर बद्दुआ के कलिमात इस्तेमाल किया करो, बिला सोचे समझे बद्दुआ न दिया करो। और खासकर मैं मेरी माए बहनों से गुजारिश करना चाहूंगा कि वो अपने बच्चों को बात न सुनने पर बद्दुआ के कलिमात कहती हैं, तू हलाक हो जा, तू बर्बाद हो जा, मेरी बात नहीं सुनता, राशन नहीं लाता, फलां बाजार से फलां तरकारी नहीं लाता, मेरी बात नहीं सुनता, तू हलाक हो जा, तू बर्बाद हो जा। हमारे कर्नाटक में अच्छे खासे बद्दुआई कलिमात बोलती है, तेरा मुंडा मुझको डंडा टूटो, कहीं गुरे सुनता नहीं हमारे बात, आगर उधर की भाषा है। अब आपको नहीं मालूम वो मुंडा क्या वो डंडा क्या, आपको नहीं मालूम।
माई बहनें अपने बच्चों को डांटते वक्त बद्दुआई कलिमात न कहें, क्योंकि वालिदैन की दुआएं अपने बच्चों के हक में अल्लाह बहुत जल्द कबूल कर लेता है। मेरी माँ, मेरी माएँ बहनें, आपको मालूम इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह कौन? सैयदुल मुहद्दिसीन, सारे मुहद्दिसीन के सरदार इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह मोहम्मद इब्ने इस्माइल जब पैदा हुए थे, इनकी आंखें थी लेकिन इनकी आंखों में बसारत नहीं थी, ये अंधे थे। इनकी वालिदा ने रात भर अल्लाह से दुआएं करती थी, या अल्लाह मेरे बच्चे की बसारत लौटा ताकि ये दीन की खिदमत कर सके। इनकी वालिदा की दुआ की बदौलत अल्लाह ने इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह की आंखों की बसारत लौटा दी। ये माओं की दुआओं का नतीजा होता है। और आपको ये बात मालूम, शेख अब्दुर्रहमान अस्सुदैस इमाम काबा, इमाम काबा इस वक्त के तमाम काबे के इमामों में वो सबसे सीनियर इमाम है और सबसे बहुत ही ज्यादा सीनियर इमाम शेख अब्दुर्रहमान अस्सुदैस। दुनिया के कौन आदमी उनको नहीं जानते, सब जानते हैं। वो खुद अपनी जिंदगी का वाकया एक खुतबा जुमा में रोते रोते बयान करते हैं कि मैं बचपन में छोटा था, मेरे घर में एक मर्तबा मेहमान आ गए और मैं इतना शरीर था, इतना शरीर था, मेरी माँ गुर्बत के आलम में मेहमानों के आने पर बड़ी मुश्किल से गोश्त का सालन मेरी माँ ने बनाया और मैं इतना शरीर था, बाहर से पशु भर मिट्टी लाया और गोश्त के सालन में मिट्टी डाल दिया, गोश्त के सालन में मिट्टी डाल दिया। अगर हमारे कर्नाटक की अम्मा रहती तो, अब झारखंड की अम्मा क्या करती थी मुझे नहीं मालूम, हमारे कर्नाटक की अम्मा रहती तो हो गया, उसका मुंडा मुझको डंडा तोड़ डालती थी। अभी क्या क्या नहीं करती थी। इमाम शेख अब्दुर्रहमान अस्सुदैस कहते हैं मैंने इतनी बड़ी शरारत कर दी कि उस सालन में मिट्टी मिला दिया, वो सालन खाने के काबिल ना रहा। तो मेरी माँ कहती है चल अल्लाह तुझे काबे का इमाम बना दे, यहां से चल अल्लाह तुझे काबे का इमाम बनाए। पता नहीं वो कौन सी घड़ी थी जिसमें मेरे अल्लाह ने इस दुआ को कबूल कर लिया और आज अगर मैं काबे का इमाम हूं तो सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ की दुआ की बदौलत है कि आज मैं इस काबे का इमाम हूं। मेरी माएँ बहनें अपने बच्चों को डांटते वक्त असलहकल्लाह या हदाकल्लाह के जुमले इस्तेमाल करें। असलहकल्लाह अल्लाह तेरे मामले को दुरुस्त फरमाए, हदाकल्लाह अल्लाह तुझे नेक हिदायत अता फरमाए। इस जुमलों से आप डांटें, आपकी डांट भी हो जाएगी, आपकी दुआ से आपके बच्चों की इस्लाह भी हो जाएगी। कभी वालिदैन अपने बच्चों को बद्दुआ देने में पहल ना करें। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियां उम्मे कुलसुम रुकैया का अबू लहब के दो बेटे उतबा उतैबा से शादी करना तय पाया था, रिश्ता तय पाया था। जब नबी ने नबूवत का ऐलान किया, अबू लहब अपने दो बच्चों से कहता है मेरे बच्चों मोहम्मद की दो बेटियों से रिश्ता कट कर दो जो तुम्हारे साथ अक्द होना तय पाया है। उतबा गया, कहता है ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तुम्हारी बेटी से अपना रिश्ता कट करता हूं। उतैबा गया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ता कट करने के बाद थूका उसने। अल्लाह की गैरत कहां बर्दाश्त करे, इस मरदूद का थूक मेरे नबी मुतहर के चेहरे पर पड़े, वो किनारे जाकर पड़ा। लेकिन अल्लाह के नबी को गुस्सा आया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जबान से निकला अल्लाहुम्मा सल्लित अलैहि कल्बम मिन किलाबिक, अल्लाह तेरे कुत्तों में से कुत्ते को इस पर मुसल्लत कर दे। अल्लाहु अकबर। फिर क्या था, अबू लहब को पता चला मेरे बेटे ने यह हरकत की, मोहम्मद ने बद्दुआ कर दी। हमेशा हर जगह अपने बेटी की हिफाजत करता था। अरे जिसे अल्लाह जमीन की सफाई हस्ती से मिटाना चाहे, सारी कायनात मिलकर उसकी हिफाजत करे तब भी उसकी हिफाजत नहीं हो सकती, क्योंकि वो अल्लाह की जात अगर उससे इबरत का निशान बनाना चाहे कौन उसकी हिफाजत कर सकता है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, एक जंगल को जाते वक्त जंगल के किनारे पर पड़ाव डाला गया, उतैबा को बीच में सुलाया गया, आजू बाजू सामान रखकर उसके आजू बाजू काफिले को सुलाया गया। रात में जंगल से शेर आया, छलांग लगाकर सीधा उतैबा के चीथड़े उड़ाकर वहां से निकल गया। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی کسی کو بد دعا کے کلمات استعمال کیے ہیں، دنیا سے عبرت کا نمونہ اور نشان اللہ نے ان کو بنا دیا ہے۔ کبھی کسی پر ظلم نہ کرے، کبھی کسی کی دل کی بد دعا نہ لے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص کون ہے؟ یہ عشرے مبشرہ صحابی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر غزوے میں شریک رہنے والے۔ فتح مکہ کے دن 3 علم نبی نے دیے، اس میں سے سعد ابن ابی وقاص کو ایک علم دیا۔ سعد ابن ابی وقاص کو حضرت عمر بن خطاب کے دور خلافت میں ملک شام کا گورنر ان کو بنایا گیا، اور وہاں لوگوں نے شکایت کی کہ یہ صحیح نماز نہیں پڑھاتے۔ جب عمر بن خطاب نے ان کو بلا بھیجا تو پوچھا کہ بھئی آپ صحیح نماز نہیں پڑھاتے؟ تو سعد بن ابی وقاص نے کہا میں ان کو نبی کی نماز پڑھاتا ہوں، اور کیسی نماز پڑھاؤں؟ مجھے یہی امید تھی، تم نے صحیح کہا۔ پھر تحقیق کے لیے عمر بن خطاب نے ایک آدمی کو روانہ کیا، تو سارے لوگ ان کے بارے میں اچھا تصور دیے، لیکن ایک شخص اسامہ بن قتادہ ان کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ لوگوں میں مال صحیح تقسیم نہیں کرتے، لوگوں میں انصاف نہیں کرتے، ڈھنگ سے نماز نہیں پڑھاتے، جنگوں میں شریک نہیں ہوتے۔ جب سعد بن ابی وقاص کو پتا چلا تو انہوں نے بد دعا کی، یا اللہ اگر یہ شخص ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے لوگوں کے سامنے کھڑا ہے تو یا اللہ میں بد دعا کرتا ہوں اسے لمبی عمر عطا فرما، اسے زمین کے فتنوں میں ملوث کر دے، اور اسے زمین میں ٹھوکریں دلا کر اس کا قتل کرا دے۔ اللہ اکبر۔ سعد بن ابی وقاص کی بد دعا اسے لگ گئی، بہت لمبی عمر جیا، وہ لڑکیوں کو چھیڑتا تھا، لڑکیاں جوتیاں لے کے مارتے تھے، اور وہ کہتا تھا مجھے سعد کی بد دعا لگ گئی۔ بخاری کا اور ایک واقعہ ہے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ مدینے میں مروان بن حکم کے پاس ایک عروہ نامی عورت، عروہ بن ثابت نامی عورت مقدمہ دائر کرتی ہے کہ سعید بن زید نے میرے زمین پر قبضہ جما لیا ہے۔ سعید بن زید کو بلایا گیا۔ سعید بن زید کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کے زبان سے یہ حدیث سنی ہے، من اخذ شبرا من الارض ظلما یطوقه فی عنقه من 7 ارضین یوم القیامہ، جو آدمی کسی کی زمین پر ایک بالشت زمین بھی ناحق قبضہ جما لے گا، اللہ 7 زمینوں کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دے گا۔ بھلا یہ حدیث میں نے نبی کے زبان سے اپنے کانوں سے سنا ہے، میں عروہ کی زمین کو اپنی زمین کیوں کہوں گا؟ مروان بن حکم نے کہا آپ صحابی رسول ہیں، آپ سچ کہتے ہیں، یہ زمین آپ کی ہے۔ اس وقت سعید بن زید نے عروہ کے لیے بد دعا کیا تھا کہ اللہم ان کانت الامرأۃ کاذبہ، یا اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے فکانت عمیہ، اللہ اسے اندھی کر دے، وقتلہ فی ارضی، اے اللہ اسی زمین میں اسے ٹھوکریں مار کر قتل کرا دے۔ عروہ اندھی ہو گئی اور گڑھوں میں گرتی تھی، لوگوں کو بولتی تھی مجھے سعید کی بد دعا لگ گئی۔ اس زمانے میں سعید بن زید کی بد دعا اتنی مشہور ہو گئی، اگر کوئی آدمی کسی پر ظلم کرتا تو وہ اپنی بد دعا میں اس طرح بولتا تھا، یا اللہ سعید بن زید کی بد دعا سے عروہ کو تو نے جیسے اندھا کر دیا، اے اللہ مجھ پر ظلم کرنے والے ظالم کو تو ایسے ہی اندھا کر دے۔ لوگ سعید بن زید کی بد دعا کو اپنی بد دعا میں تمثیل دیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کسی پر ظلم نہ کریں۔ اگر آپ نے کسی کا مال لیا ہے، کسی کو گالی دیا ہے، کسی کی عزت سے کھیلا ہے، کسی کی ضمیر کو ٹھیس پہنچایا ہے، آپ کی موت آنے سے پہلے اس سے معافی مانگ لیں، ورنہ اللہ کے پاس حقوق العباد کے جب فیصلے کیے جائیں گے اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا جب تک آپ کا بھائی آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ بس میں اسی پر بات ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں الہ العالمین ہم تمام کو حقوق اللہ کے معاملے میں بھی کما حقہ تیری عبادت بجا لانے کی توفیق عطا فرما، حقوق العباد کے معاملے میں ہر ایک کے حقوق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے سر پر جن جن لوگوں کا قرضہ ہے یا جن جن لوگوں کی امانتیں ہیں، اے اللہ ان قرضے کو، ان امانتوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ریاکاری سے ہماری حفاظت فرما،
اخلاص و للہیت کے لیے جینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آج اس عظیم الشان اجلاس کو جس نیک مقصد سے قائم کیا گیا ہے، اے اللہ اس اجلاس کے قائم کرنے والوں کو دنیا اور آخرت میں اجر عظیم عطا فرما۔ اے اللہ یہاں جاگنے والے تمام بھائیوں تمام بہنوں کی اے اللہ ان کی بال بال مغفرت فرما، کروٹ کروٹ ان کی موت کے بعد جنت عطا فرما۔ اے اللہ اس نیما کلا کے جامعہ نور الہدی سلفیہ اور کلیہ ختیجۃ الکبریٰ ختیجہ بنت خویلد للبنات کو اے اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ اے اللہ اس ادارے کے تمام ضروریات کو تیری غیبی امور سے پورا فرما۔ اے اللہ جن جن بھائیوں نے آج دیا ہے اور جو بھائی بہنیں کل دے رہے ہیں، اے اللہ ان کے عطیات صدقات خیرات زکات کو تو شرف قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے یہاں حاضر ہونے کو قبول فرما لے، ریاکاری تکبری سے ہمیں بچا لے۔ اے اللہ ہر کسی کے ساتھ رحم دلی سے عاجز و انکساری سے اخلاق حسنہ سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما، ظلم و زیادتی سے ہماری حفاظت فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔